Assalamu alaikum grade 6. Hope so you all are well by the grace of Allah Almighty. Students, in our previous lecture we have completed exercise 8C question number 6 to 11. Now we are going to start our unit number 10, that is basic concepts of geometry. In this unit we will learn about a few basic terms used in geometry and also about two-dimensional planes and their types. So let's understand what is geometry. Geometry is a branch of mathematics that studied the size, shapes, positions, angles, and dimensions of things. Students, flat shapes like square, circle, and triangles are a part of flat geometry and are also called 2D shapes. Let's understand concept about some shapes. First one is sphere. Student, sphere is completely round like a ball. As you can see here, a sphere is nature's favorite shape. The sun, planets, and soap bubbles are all spherical. That is examples. The sun is spherical and earth is also. Second one is circle. स्टूडेंट सर्कल में अगर हम एक पॉइंट को लाइक हेयर अगर मैं यहाँ पे एक डॉट को ड्रॉ करती हूँ सो इस डॉट के जो राउंड डॉट्स होंगे इक्वी डिस्टेंस होंगे, इसे एक ही फासले पे होंगे. लाइक अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये एक हमारे पास क्या होगा, सर्कल होगा. Here you can see that if a sphere is nature's favorite shape, can a circle be far behind? Let's cross section of several fruits. स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ फ्रूट्स को क्रॉस सेक्शन करें मीन्स कि अगर हम उसको कट करें देन यू कैन सी हेयर वाटरमेलन. अगर इसको कट करने के बाद इसकी शेप जो है वो कौन सी है, स्फीयर और इधर सर्कल. यस, इट इज़ सर्कल नॉट स्फीयर. सच एज आ cucumber and banana. The complete rainbow, the arc of rainbow that is often seen is the arc of a circle and the moon appears to be circular. Students, arc mean the boundary of a circle. और अगर हम ऑब्जर्व करें सो जो मून है वो भी हमें सर्कुलर ही ऑब्जर्व होते हैं. थर्ड वन इज़ कंसेंट्रिक सर्कल्स. अगर हम एक स्टोन को वाटर में फोल्ड करें मीन्स पानी में अगर गिराएं सो पानी में गिराने के बाद अगर आप कभी नोट किया हो, आई थिंक सो आप सबने इसे ऑब्ज़र्व किया है, बट टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट. अगर हम स्टोन को फोल्ड करते हैं सो स्टोन को फोल्ड करने के बाद उसके राउंड इस शेप में सर्कल्स अपीयर होते हैं. मीन्स सर्कल अपीयर होते हैं लेकिन उनका जो सेंटर होता है सब सर्कल्स का वो सेम रहता है. लाइक हेयर इज सेंटर और वन सर्कल, सेकंड सर्कल एंड थर्ड सर्कल, इन सब सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम है. A stone dropped in still water produces concentric circles. These circles are called concentric circles. The annual ring in a tree trunk are often concentric circles. अब यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं. अगर हम एक दरख्त को देखते हैं और उसकी जो शेप होती है, जो सेंटर वाला पार्ट होता है, सेंटर जो पॉइंट होता है और उसके राउंड जितने भी सर्कल्स होते हैं उन सब सर्कल्स का जो सेंटर है वो एक ही होता है. फोर्थ वन इज़ एलिप्स. One may not be able to see an ellipse immediately, but the path that the Earth takes around the Sun is elliptical. An ellipse is a more mathematical version of an oval. यहाँ पे हमारे पास जो इस तरह की शेप होती है एज शोन इन द फिगर, और इस शेप को हम कहते हैं एलिप्स. स्टूडेंट्स, अगर हम कभी नोट करें सो लेट्स सी हेयर सन, और सन के गिर्द जो अर्थ का वे होता है, जो रास्ता होता है जिसमें अर्थ सूरज के गिर्द मूव करती है, सो वो जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है. मीन्स के सर्कुलर पाथ नहीं होता है, डैट पाथ इज एलिप्टिकल, इस शेप में होता है. सो डैट शेप इज कॉल्ड एलिप्स. नाउ लेट्स सी डिटेल अबाउट ओवल. Here we can see that oval, longitudinal section of some fruits such as kiwis and some varieties of papayas are ovals. An oval is not a precise term. It is a shape that may look like an egg or an ellipse with broad ends. As you can see here, the shape of an egg. अगर हम स्टूडेंट्स एग की शेप को देखें सो दिस शेप इज़ कॉल्ड ओवल शेप. जो एग की शेप है डेट इज़ ओवल. And also if we see shape of papayas then that is also oval. Next one is hexagon. The cells of a beehive are hexagonal. Hexagonal students उस shape को कहते हैं जिसकी 6 sides हों. They have 6 sides.
स्नोफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन अ मिलियन डिफरेंट हेक्सागोनल शेप्स। अब यहाँ पे आप इसकी शेप देख सकते हैं, जो हेक्सागोनल की शेप होती हैं डेट कंटेन 6 साइड 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर हम बी हाफ देखें सो यहाँ पे जो इसकी शेप है, लेट्स आई एम गोइंग टू जूम इट। नाउ यू कैन सी हेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसकी शेप है आप देख सकते हैं, इसे रेड बाउंड्री से शो किया गया है। तो इसके जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेक्सागोनल। द शेप कंसिस्ट ऑफ 6 साइड कॉल्ड हेक्सागोनल। नेक्स्ट शेप इज ट्राइंगल। द नोज ऑफ अ पर्सन लुक्ड एट फ्रॉम दिस साइड इज ऑफन ट्राइंगुलर। स्टूडेंट्स, अगर हम नोज को नोट करें सो इट्स शेप इज ट्राइंगुलर। अ हेक्सागोन हैज 6 इक्वल ट्राइंगल्स। हेक्सागोन में 6 इक्वल ट्राइंगल्स होते हैं। हाउ यू कैन सी हियर हेक्सागोन डेट कंसिस्ट ऑफ 6 साइड डेट आर 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर हम इन 6 साइड्स को 1 पॉइंट पे यहाँ से कनेक्ट करें 1 पॉइंट पे, दीज आर हाउ मैनी ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 एंड 5। दीज आर द 5 ट्राइंगल्स। And also this contains equal triangles. The cross section of an orange or a lemon shows several triangles around the center. अब यहाँ पे हम लेमन में भी देख सकते हैं और ऑरेंज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऑरेंज में भी देख सकते हैं और लेमन में भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम ऑरेंज के और लेमन के शेप को नोट करें तो इसमें भी ट्राइंगुलर शेप्स हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन। और रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वी नो डैट व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती हैं, a ray of light travels in a straight line, allows sunshine to pass through a tiny hole in a piece of cardboard. To observe how the sunlight travels in a straight line. Shooting stars often shoot in straight line. Students, इसके लिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो लाइन है, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करने के लिए कि लाइन स्ट्रेट ट्रेवल करती है, यू कैन सी डैट। इसके लिए हम कुछ कार्डबोर्ड लेंगे और कार्डबोर्ड लेने के बाद उसमें सेंटर में एक टीनी होल कर लेंगे। टीनी होल करने के बाद आप एक टॉर्च से देख सकते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, बिकॉज लाइट इन होल्स में से स्ट्रेट पास होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक होल में से स्ट्रेट पास हुई है सो सेकेंड होल में से लाइट पास नहीं हुई और थर्ड में से भी लाइट पास नहीं हुई। That shows that light travel in straight line. Next one is parallel lines. Small parts of parallel lines can be seen on the back of a square. Students, parallel lines means lines that not meet at a point. Like here, these are the lines that not meet at a point. ये किसी एक point पे meet नहीं कर रही, continuous going on, और ये lines भी किसी एक point पे meet नहीं कर रही। These 3 lines and these 3 lines separately, and these 3 lines are also not meet at a point. और यहाँ पे भी आप parallel lines देख सकते हैं जो below given है, these are the parallel lines, and जो above 2 हमारे पास given है that are also parallel lines. अगर हम spherical back पे नोट करें, that also consist of parallel lines. There are also parallel lines. The 2 vertical edges of a palm tree. Palm tree means student जो खजूर का दरख्त है उसके जो vertical edges होते हैं that are also consist of there are also parallel lines. The 2 bank of a river are parallel for short distance. अगर हम किसी भी river के किनारे को नोट करें तो both are parallel to each other. Several sets of parallel lines can be drawn in the sky joining stars. We can also draw parallel lines by joining stars in the sky. Students, these were all the shapes, so understood it. Now move towards the points, lines and planes. Students, point, line and plane are some of the most frequently terms used in geometry. An edge हम mostly, edge means kinara. So an edge along the floor or the wall is referred to as a line. Now let's understood through definitions. Here is the definition of a line segment that you can see here. A line segment is a series of points that is found at both ends. यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल एक लाइन सेगमेंट देख सकते हैं. लाइन सेगमेंट इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स दैट इज़ फाउंड एट बोथ एंड्स. यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है और यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे इस तरह से लिखते हैं, ए बी के ऊपर लाइन को ड्रॉ करेंगे, इट विल रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट. और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लाइन है वो दोनों तरफ से एंड है.
Now it can be extended to infinity in both directions to make a line as shown below. अगर हम इसे एक्सटेंड करें मीन्स के ये पॉइंट बी है और यहाँ पे एक और डॉट ड्रॉ करके इस लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है, फिर यहाँ पे एक और डॉट ड्रॉ करके पॉइंट ड्रॉ करके इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। हम इसे बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। Then a line is a series of points that extends infinitely in both directions. यहाँ पे हमारे पास ये line segment अगर both direction पे extend हो then that is called a line. Now let's see the definition of surface. A surface is flat and goes on to infinity in all directions. Now here it is important to clarify that point number 1, a line has infinite length. एक जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हेयर लाइन इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट डेट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, जो कि बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइट एक्सटेंड करे। सो लाइन हैज़ इनफाइनाइट लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी। सेकेंड पॉइंट, अ प्लेन ऑल्सो हैज़ इनफाइनाइट डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक प्लेन की इनफाइनाइट डायमेंशंस होती हैं of length and breadth. Now next move towards the point, that is a point has no length, breadth or height. एक point की कोई भी length नहीं होती, breadth नहीं होती and also no height. Let's अगर हमें यहाँ पे एक point draw करो, this is a point. अब इसकी कोई भी लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है और ना ही कोई हाइट है। A geometrical point indicates that only a position, it has no dimension. It has just a position. Here is a position of point, but it has no dimension. Here you can see that straight line segment. A line segment is a series of points that is bound at both ends, as we have already studied above. Part number 1, you can see here are some dots. These dots represent a line segment. अगर हम इनको join कर रहे हैं, it represent a line segment. और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो dots थे वो थोड़े से gap के साथ थे, यहाँ पे dots close हैं कुछ। And these also अगर हम इनको join करते हैं, it is also a line segment. So I can say it as it is a straight line segment. Third one is students, अगर हम dots को thick कर दिया जाए, means जैसे यहाँ पे dots thick हैं, so it also make a straight line segment, and this one is also a straight line segment, A to C, AC. यहाँ पे A और C ये जो straight line segment है, here are millions of points that are not showing here and that we can't see. Maybe there are millions of points. ना स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट को ड्रॉ करती हूँ, सो यू कैन सी एक ही पॉइंट को ड्रॉ करने से उसमें से हम बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस को पास कर सकते हैं। अगर हम एक पॉइंट ड्रॉ करें और उसमें से इनफाइनाइट लाइंस को पास किया जा सकता है। सो एन अल्टीमेटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट में से एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने रूम में कॉर्नर पे देखें, सो कॉर्नर पे आपको 3 एजेस नज़र आएंगे, 3 एजेस डेट आर ऑल्सो लाइन सेगमेंट्स। सो इस तरह से हम अपनी इस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में इसके बहुत सी एग्जांपल्स देख सकते हैं लाइन सेगमेंट की। नाउ हेयर यू कैन सी डैट अगर एक पॉइंट को ड्रॉ कर दिया जाए, उस पॉइंट में से आई कैन से डैट वी कैन ड्रॉ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस। एक पॉइंट को ड्रॉ करने से उसमें से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस पास की जा सकती हैं एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। येस, नाउ अ लाइन सेगमेंट इज स्पेसिफाइड विथ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डेट इज स्पेसिफाइड विथ 2 एंड पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, अगर एक पॉइंट स्पेसिफाइड हो मीन्स एक पॉइंट सिलेक्टेड हो और सेकंड वन जो पॉइंट है वो और सेकंड वन पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया जाए, देन दैट विल बी कॉल्ड अ रे। नाउ यू कैन सी हियर इज अ टॉपिक ऑफ रे। नाउ यू कैन सी हियर इज अ टॉपिक ऑफ रे एंड हियर इज द डेफिनेशन। A ray start from a definite source and extend to infinity on the other side. जो रे है डेट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर इज़ अ पॉइंट ए और हेयर इज़ अ पॉइंट बी, डेट इज़ अ लाइन सेगमेंट। अगर हम इसे एक्सटेंड करते हैं एक डायरेक्शन से मीन्स एक तरफ से इसे एक्सटेंड करते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड अ रे। Here is a specific point, fixed point, and another point is not fixed, that is extend up to infinity. This is called array.
Now students, array is a part of a line, yes, with one end point. यहाँ पे हमारे पास one end point है, with the other point extending infinitely. जो other point है वो extend हो रहा है infinitely. That is why array is a part of line. Okay students, understood all the concepts and learn all important points. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.